Hello, good evening. Welcome to Unacademy. I am Colonel Rehal, and today we'll be continuing from where we left day before yesterday in our previous class, which was how to set smart goals to ace the SSB. Now, today we'll be covering the second part, in which some more details about how to set these things, what are the benefits, and why, after setting the goals, we don't get them. We don't get the desired result. Set तो हमने कर लिए goal, but then, and even if we take action, why we don't get the desired results? Yeah, good evening, all of you. Thank you, Pratik. Yeah, I will not be able to refer to you by name throughout because that I have to see elsewhere. और फिर वो ये प्रॉब्लम आ जाती है, right? So that we discussed about, say if you are playing football, what happens अगर goal post नहीं है तो. Same is true for your life. If you don't set up our goals, तो फिर इधर उधर ही भागते रहेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. We will not know where we are going. एम हमारा क्या है वही नहीं पता तो कहाँ जा रहे हैं कैसे पता लगेगा. फिर तो वही हमने डिस्कस किया था कि any road will take us there. That is not desirable, that any road will take us somewhere or this thing. So no, if you have a desire, if your goal is becoming an officer, army officer, air force officer, naval officer, any of the defense services, you want to become an officer, so then there are certain things. और इसके अंदर एक आपको जो सबसे पहली जरूरी चीज है, जो प्रेपरेशन करनी है आपको, और प्रेपरेशन के लिए आपके लिए सबसे जो काम की चीज आपको मिल रही है वो ये है, ये प्लेटफॉर्म. अभी तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, बट अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म, दिस प्लेटफॉर्म which you are getting. Here there are many advantages. So if you are not yet on Unacademy, you can download this app. एक गूगल स्टोर वगैरह, आई मीन जहाँ से भी डाउनलोड होती हैं तो गूगल स्टोर पे है. अगर आप आईफोन वाले हो तो उनका जो भी स्टोर होता है वहाँ पर है. And once you have downloaded, you register. Then there are free classes which you can see. But if you really want to get the results, the best out of this platform, where you have best of the mentors. Now where, if you see for SSB itself, you have the best of the mentors. So choose your category, whether it is for that post-graduation, CDS, FCAT, like, that is for all the entries which are post this graduation, or those who are in the school or just cleared the school and preparing for NDA, take that platform. Advantage is that in any of these categories you can attend all the classes, including the written की तैयारी है वो भी, SSB भी, और जो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी साथ साथ कराता रहूँगा वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे है. Those subscriptions you can have a look, and if you use this code, this is a discount code, Colonel Rehal, COLREHAL, then you will get advantage. तो वो रेट्स आपके सामने है. So don't delay. अगर आपको इसका फायदा उठाना है, so goal set करो, smart goal. We discussed very quick look we will have. So फुटबॉल का we were just discussing कि फुटबॉल से हमने क्या देखा कि अगर गोल पोस्ट नहीं है तो क्या गेम होगा. You not know किसको बॉल दे, कौन पास करे, किसको पास करे, motivation will go down. Same thing happens with us when we don't have a goal in our life. 70% plus 25% people are in this category. वो जो सेकेंड लॉट है 25%, वो गोल तो सेट कर लेते हैं, बट फिर दे डोंट नो हाउ टू अचीव दैट गोल. जो उनको, उनके पास जो गॉड गिवन टूल्स हैं, जो चीजें उनको मिली हुई हैं,
उनका ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉरगेट अबाउट तो बाहर से क्या मिलेगा, अन अकेडमी से क्या मिलेगा, फला फला से क्या मिलेगा, वो तो बात की बात है। पहले तो जो जो मिल रहा है उसको फायदा कैसे उठाना है, वो 4 टूल्स आई हैव टोल्ड यू। सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्शियस, विल पावर एंड इमेजिनेशन, जो भगवान ने खुले रूप से आपको दिया है। हर पहले तो बच्चा ही होता है, हर बच्चे को पैदाइश के टाइम पे ही साथ में मिला है टूल बॉक्स 4 टूल्स के साथ, बट यूजर मैनुअल नहीं मिला है। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन आवर लाइफ वी हैव लर्न सर्टन थिंग्स। अगर कहीं उसमें कुछ थोड़ा बहुत एरर आ गया है तो दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। अभी कल से दोबारा शुरू हो रहा है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, नो योर सेल्फ, के वाई सी कोर्स, नो योर सेल्फ कोर्स, जिसमें आपको अपने बारे में पता लगेगा और ये जो गॉड गिवन टूल्स हैं जो हमारे, उनको यूज करने का मेथड आपको पता लगेगा उसमें। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच यू हैव। सो अगर हमारा गोल नहीं है तो हम भटकते रहेंगे। वी देन लाइक वी सेड, वी हैव टू नो नॉट ओनली द स्टार्ट पॉइंट, वी ऑल्सो हैव टू नो द गोल। नॉट ओनली द गोल, ये भी जरूरी है। माई लोकेशन हैज टू बी देयर, गूगल तभी आपकी हेल्प कर पाएगा। सो मैं आज कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये दोनों चीजें जब फेड होती हैं, यू विल गेट द करेक्ट रूट, यू विल रीच योर डेस्टिनेशन बाय द शॉर्टेस्ट रूट दिखाता है उसमें। तो दोनों चीजें हमने सेट कर, हमें पता होनी चाहिए पहले मैं कहाँ हूँ आज, और दूसरी चीज जो मैंने अचीव करना है। बिकॉज जैसे ही आपने गोल सेट कर दिया ना, ये आपने सेट कर दिया, यू हैव ए पर्पस फॉर योर लाइफ। ये फोन को कहाँ रखूं, मेरे फोन पे ही मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। CAPF, बट थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन ये जो अभी हम क्लासेस कर रहे हैं, ये तो ना केवल CAPF, ये तो हर चीज में, दिस इज फॉर लाइफ, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दिस इज समथिंग, द मोमेंट आपने अपना गोल सेलेक्ट कर लिया, सेट कर लिया, उसमें यू हैव ए पर्पस फॉर योर लाइफ। सॉरी, ये क्या हो रहा है, हवा भी पकड़ रही तो। इट गिव्स अ पर्पस टू योर लाइफ। उसके बिना तो भटक रहे हैं। आज कहाँ हो, कल कहाँ पहुंचना है, ये पर्पस आपको मिल जाता है। अदरवाइज एनी रोड विल टेक यू वेर एवर, जब पता ही नहीं है मंजिल, तो हर मंजिल रोड कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगी। और जब हमारा गोल नहीं होता है, अपने गोल के लिए हम काम नहीं करते हैं, देन वी आर वर्किंग फॉर समबडी एल्स, किसी और का हम काम कर रहे होते हैं, विच इज नॉट डिजायरेबल। ठीक है, इन एनी जॉब यू आर वर्किंग फॉर समवन, बट अगर आपका गोल है तो उसके अंदर भी आप, मैं आपको चल के बताऊंगा 80-20 रूल, वो आप लागू कर सकोगे अपने लिए, एंड देन यू हैव टू बी इन द टॉप 20% एवरी टाइम। इसके और क्या फायदे हैं 80-20 के, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ, आई थिंक ये यूज करने के लिए मुझे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। अबाउट माई सेल्फ, या सो थ्रू NDA, so 3 years plus 1 year in IMA, and then plus ये 32 years. After this I retired, and during this 9 years I was there in the selection organization. Three years at Bhopal GTU, 3 years at Army headquarters as Joint Director Officer Selection. जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर आएगी, इट बी साइन, मैंने पता नहीं कितने ही साइन किया है, so many students, for 3 years I was there. तो and for all entries, सोचो एक साल में कितने बच्चे होते हैं, उस टाइम पे कहता था जल्दी जल्दी साइन करो, बट आई न्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइन फॉर द
child who is receiving it. Then I was 3 years director recruiting. Now, post my retirement, I worked in the corporate for about 5 years, and then after that, I decided to work for the betterment of young people. Why not help students with what I had? So, because I had the perspective, जो इसका perception है, perspective SSB को देखने का, one side, as a candidate, as an assessor, and then finally, now assessor's perspective is one thing, कैंडिडेट पर्सपेक्टिव इज वन थिंग, पर वो जो सिखाना है, जो बच्चे जिससे सीख सके, दिस आई गेंड बिकॉज आई वाज डीन ट्रेनिंग एंड एकेडमी इन MBA कॉलेज, तो वहाँ बच्चों के प्लेसमेंट के लिए देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, और बाकी ये नॉलेज तो था ही GTU से, तो देन आई स्टार्टेड माय ओन क्लासेस, ये सारा कुछ वहाँ होता था. एंड यू सी हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज फॉर द SSB. इसके बिना तो आप SSB में जा ही नहीं सकते, अगर ये नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकते SSB में, सिलेक्शन नॉट पॉसिबल. तो यही चीज तो देखनी है उन्होंने, आपकी पर्सनैलिटी देखनी है. और ये जो चीजें हैं जो अभी भी हम कर रहे हैं, जो आज मैं कर रहा हूँ, आगे भी मैं आपको कराऊंगा कुछ क्लासेस, वो सारी इसी पॉइंट की तरफ है कि वो आप अपने आप को डेवलप कर सको विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेटिंग रिकमेंडेड इन द SSB, डूइंग वेल इन योर लाइफ. ये दो चीजें हैं, दोनों में आपकी मदद करेगी, बिकॉज SSB इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ, important but very small part of life. I have been a mentor with Atal Innovative Mission, Niti Aayog, where responsibility given to me is personality development for the school children and inculcating creativity, imagination and innovativeness amongst the young students. Because somewhere कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक गड़बड़ हो चुकी है. जैसे बताया वैसे ही लिखो, कॉमा फुल स्टॉप सही होना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे. तो उस चीज को निकाल के ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी को खुद यूज कर सके. जो भी आप स्कूल में हो, अपनी NCERT की बुक खोलो, पेज 1 पढ़ो, उसका इंट्रो प्रीफेस, सबसे पहला पैराग्राफ यही बोलता है, और वहीं दबा दिया गया, उसको कहीं से कहीं दब गई है. और ये सारी की सारी चीजें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, योर क्रिएटिविटी, योर इमेजिनेशन, योर इनोवेटिवनेस, SSB में और क्या है, यही तो 4 चीजें आपने वहां देखी. इन द प्रीवियस क्लास somebody was telling me, सर ये आप कौन सी क्लास ले रहे हो, ये तो SSB से रिलेटेड नहीं है. ऐसे बेटा यही तो SSB से रिलेटेड है. और हाँ जी, आप TAT करोगे, WAT करोगे, SRT करोगे, उसकी प्रैक्टिस करा दो. तो प्रैक्टिस में क्या करोगे आप, जब आपको ये एग्जैक्टली आप अपनी पर्सनैलिटी को उसमें नहीं दिखा पा रहे हो, और जो आप दिखा रही है उसमें समथिंग इज लैकिंग, सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. इस चीज को प्लीज बिफोर यू आस्क मी सर इसका SSB से क्या ताल्लुक है, मैं आज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ. आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एट खडूर साहब आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट एंड आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी फतेहगढ़ साहब. ये दोनों वो हैं जो आफ्टर 10th 11th 12th में बच्चों को वहाँ से 11th 12th कराते हैं. तो माई रोल अगेन वॉज द सेम जो मेरे ऊपर रखा हुआ है, वही चीज़ें मैं वहाँ बच्चों को कराता था. यहाँ का पूरा सेटअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो ऑब्स्टिकल्स वगैरह का सब मैंने किया था, ऑल द टास्क. एंड देन आई वाज डायरेक्टर एट SSB शॉर्ट अकेडमी पंजाब, जो फ्रॉम द स्क्रैच उसको क्रिएट करने का काम मैंने किया था. आई वॉज देयर फॉर दिस. अप्रैल में गया था मैं वहाँ पे, जून 31 मार्च से वो शुरू हो गई थी, 31 मई से, दैट मीन्स जून से इफेक्टिवली, एंटिल दिसंबर आई वॉज देयर. 6 बच्चे मेरे वहाँ रिकमेंड हो गए. और ये जो मैं ये यहाँ पर है, नो आई एम नॉट काउंटिंग कितने हो रहे हैं. अच्छा लगता है, मैं रख लेता हूँ उनकी फोटो और अपने उसके लिए. एंड very happy to tell you that I mean in the recent in the last 2 months only 6 students have qualified, 3 from the Unacademy platform. So मेरा नंबर बढ़ाओ, I will be very happy when. So we discussed the SMART goals. इसके अंदर we saw that ये क्या कुछ आपको images दिखी थी इसके अंदर, ये गोल कैसे होने चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल,
मिजरेबल नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम्ड। अगर ऐसे नहीं है तो फिर ये गड़बड़ कर देते हैं हमारे लिए, तो दिस सेल्स के बिकॉज ये तो हमने कर लिया था। या दिस वी हैड डिस्कस्ड कि स्पेसिफिक में क्या होता है, मेजरेबल में क्या होता है, अटेनेबल क्या है, रियलिस्टिक क्या है, टाइम क्या है। एक चीज मैंने आपको बतानी थी, इससे क्या बन रहा है, बेटा सारे के सारे ही आसान है। धर्मवीर तुम, आई थिंक पिछली बार भी आपके यू आर देयर इन द क्लास, गुड। आंचल सारे हो गए रिकमेंड, सारे हो गए, मैं उसी के लिए आपको ये क्लासेस करा रहा हूँ। एंड आई एम नॉट जस्ट TAT WAT PPNGT, वो तो आप कर लोगे जब आप इस चीज के अंदर आपका एक गोल सेट कर लिया आपने, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गई, तो कैसे नहीं आप रिकमेंड हो गए। मैच कर रही है वहाँ के उनके रिक्वायरमेंट के साथ, उसी पे मैं काम कर रहा हूँ ताकि वहाँ से मैच करे, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये आज का जो है वो ये है, आगे चल के और भी क्लासेस करूंगा, चाहे यूट्यूब पे या फिर जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस होती है, प्लस जो हमारा प्लस कोर्स है, अभी उसके ऊपर KYC कोर्स, नो योरसेल्फ कोर्स में यही तो हो रहा है। आप बच्चों को अपनी स्ट्रेंथ्स, अपने बिलीफ्स, अपने वीकनेसेस, अपनी जो धारणाएं बना रखी हैं आई कांट और आई कैन, वो और उनको थोड़ा चेंज करने के लिए बता दो क्या वैल्यूज हमको अपनी रखनी चाहिए। अगर मेरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरी जिंदगी में ये है कि भाई सेफ्टी, तो फौज के लिए भूल जाओ, या तो उसको चेंज करो या कैरियर चेंज करो। मनी, फौज को भूल जाओ, ठीक है, इट गिव्स यू अ गुड पे, बट देन वो जो बच्चे जो इमेजिन करते हैं वो जैसे बिजनेस में जो मिलेगा वो तो नहीं मिलेगा, जो कॉर्पोरेट में मिलता है सैलरी वो नहीं मिलेगी, पर जो लाइफ आपको मिलेगी, द लाइफ स्टाइल विच यू विल हैव, आप ऐड देखते ही रहते हो, लिव ए लाइफ लेस ऑर्डिनरी, ठीक है। ओके, तो धर्म भी टेक्निकल एंट्री हो, जो एंट्री हो, SSB सबका सेम है, मेथड यही है और यही चीजें आपको मदद करेंगी। मैं थोड़ा से जरा से एक सेकंड के लिए हटूंगा। राज प्रताप, ये क्वेश्चन सबके लिए लागू है, सबके मन में आता होगा। व्हाट हैपेंस एट द SSB इंटरव्यू इफ ए पर्सन हैज नो ECA, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ड्यूरिंग स्कूल और कॉलेज। स्कूल में नहीं है तो अभी अभी डेवलप करनी शुरू करो, जो भी आप कर सकते हो। आपका कॉलेज भी हो चुका है और आपने ये नहीं किया, इट इज नेवर टू लेट टू डेवलप योर हॉबीज, एटलीस्ट आप कभी भी कर सकते हो। नहीं है आपके पास, आपको नहीं टाइम मिला, यू विल हैव योर ओन रीजंस कि आपने नहीं किया, तो फिर आप अपना फ्री टाइम कैसे इस्तेमाल करते थे, आपके पास ये बताने के तो यू विल बी एबल टू टेल ना कि आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, 24 घंटे में आप कैसे गुजारते हो। आपसे रूटीन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, योर डेली रूटीन ऑन ए हॉलीडे एंड ऑन ए वर्किंग डे, तो क्या बताओगे आप। तो कहीं ना कहीं कुछ है, शायद आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो। तो ये फिर कोर्सेज में हम यही तो डिस्कस करते हैं कि आप जिसको आप छोटी छोटी चीजें समझते हो वो सारे काम की होती है। गेम्स खेलते हैं लेकिन सर मैं तो रिप्रेजेंट नहीं किया सर, स्टेट को नहीं किया। अरे स्कूल में खेले हो, गली में खेलते हो, तो खेलते तो हो ना। यू मेंशन दैट आई हैव प्लेड, यस, लेवल डैश कर दो। नहीं है लेवल, नहीं खेला, उसको चेंज कर सकते हो, नहीं चेंज कर सकते हो। ECA नहीं थी, नहीं थी। तो SSB इज नॉट अबाउट योर extra curricular activities or your interests or your hobbies or your marks, they are seeing your personality। इन चीजों से आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी अलग तरीके से डेवलप हो जाती है। आप टीम गेम्स खेलते हो तो सर्टन थिंग्स कम इन टू योर पर्सनैलिटी, कोऑपरेशन, टीम स्पिरिट, तो वो ज्यादा अकेले अकेले रहते हो तो वो चीजें नहीं होती हैं। तो उस वजह से ये एक इनपुट है, एक इनपुट अगर आपकी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि निकालो। फिर आपको SSB बुलाने की जरूरत क्या है, वो बोलेंगे भी अपना PIQ भर के भेजो, एक बंदा वहां जाके PIQ देखता रहेगा, ये गेम नहीं खेलता, निकालो, इसका इजी नहीं है, निकालो। नो, दे वांट यू टू बी देयर। विदाउट, किसी ने गेम नहीं खेली है, किसी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हॉबी नहीं थी, आप सोचो रिकमेंड नहीं होंगे, दे विल गेट रिकमेंडेड डिपेंडिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी, डिपेंडिंग ऑन देयर OIR, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेनेबिलिटी। उनके अंदर पोटेंशियल अगर है और जब ट्रेनिंग होगी एकेडमी में, आपका लेवल जो डिजायरेबल लेवल है वहां तक आ जाएगा, यू विल बी रिकमेंडेड।
तो ये छोटी छोटी ऐसे नहीं, ये वायरस है, ठीक है, इनके पीछे अपने दिमाग को मत लगाओ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो कर सकते हो उसके ऊपर काम करो। व्हाट इज आउटसाइड ऑफ यू, यू कांट कंट्रोल। जो पास्ट था पास्ट, लिख ही देता हूं, एक होता है आपका पास्ट, दिस इज नॉट इक्वल टू योर प्रेजेंट, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर। अभी इसके ऊपर फोकस कर करके इसको खराब मत करो, इसको खराब मत करो। गाड़ी चलाते हो क्या देख के चलाते हो, रियर व्यू मिरर या सामने शीशा देखते हो? आई एम श्योर सामने देख के चलाते होगे, बट यस, रियर व्यू मिरर देखना भी जरूरी है कि एक बार हमारा टर्न पीछे से गाड़ी आ रही थी, बड़ी मुश्किल से बचे, तो एक सबक सीखा। अब कहीं टर्न करना है तो पहले रियर व्यू में देख लेते, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, क्लियर है, फिर इंडिकेटर देकर लेन चेंज करके फिर उधर को मुड़ते हैं। तो दैट इज पास्ट। जो रियर व्यू में हमें दिख रहा है हो चुका है, हम उसको देख रहे हैं। आगे शीशे में हम कहाँ देखते हैं? मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली का मैप लगा के चलूंगा? नो, मेरे सामने 50 गज 100 गज तक मैं देखता हूँ, 100 मीटर्स 50 मीटर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। बहुत कंजेस्टेड है तो 10, इवन 10 यार्ड्स इज मोर देन 10 मीटर्स भी नहीं आप देख सकते हो, बिकॉज आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, तो देन यू आर फोकसिंग ओनली ऑन दैट, राइट लेफ्ट सामने, राइट लेफ्ट सामने, ये टच तो नहीं कर जाएगा। ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट पे आप फोकस करते हो, गोल आपने डिसाइड किया हुआ, फ्यूचर आपने डिसाइड किया हुआ अपना, यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, बट डोंट लेट दैट पास्ट स्पॉइल द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। यही मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपका जीडी ठीक नहीं हुआ, अब उसके यार जीडी में ऐसे कर देता है, यार जीडी में ऐसे कर लेता है, यार ये पॉइंट मेरे को याद था नहीं बोले, नहीं बोले, छोड़ दो। अभी जीटीओ ब्रीफ कर रहा है, उसको सुनो, अगले टास्क पे फोकस करो। आधे बच्चे तो इसी में उड़ जाते हैं बिकॉज उन्होंने जीटीओ की ब्रीफिंग ही नहीं सुनी ढंग से, या दिमाग में वही चल रहा है, कीड़ा वायरस घुसा हुआ है, या बहुत अच्छा कर दिया जीडी, मतलब अच्छा गया यार, आई गिव ऑल द पॉइंट्स एंड डिडंट अलाउ एनीवन टू स्पीक। ये नहीं पता कि उसका इफेक्ट क्या होगा, बार बार वही सोचते जा रहे हैं, यार मजा आ गया, यार मजा आ गया। वो जो अगला टास्क है फ्यूचर, उसका बैंड बज रहा है फिर उनका प्रेजेंट की वजह से। तो प्रेजेंट पे फोकस करो, ये डोंट वरी अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड दीज थिंग्स, यू शुड हैव डन। अगर आप अभी स्कूल में हो तो कर लो, ठीक है, एंड डोंट मेक दीज नकली हॉबीज। सर रीडिंग बुक्स 4 किताबें के आजकल सिनॉप्सिस मिल जाता है बना बनाया, उसको पढ़ लिया, पैर पे कुल्हाड़ी मारना, कुल्हाड़ी पे पैर मारने वाला काम है नहीं है, बी ट्रूथफुल, ठीक है। मैं बहुत डाइवर्ट कर गया था। शिव बोल रहा है कि आई वांट टू एनहांस माय क्वालिटीज बिहेवियर एंड एटीट्यूड, तो आई टोल्ड यू केवाईसी कोर्स इसी के लिए है, एंड यू कैन सी माय वीडियोस, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं, हाउ टू इम्प्रूव योर रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस शायद यूट्यूब पे नहीं है, वो आप ऐसे मेरे नाम से सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे है, अनअकैडमी के थ्रू नहीं है। नर्वसनेस दूर करने के लिए क्या करूं, आपको मिलेगा। एंड अभी आगे आगे मैंने और चीजें भी कवर करनी है, बाकी क्वालिटीज भी करूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा लगती है कॉन्फिडेंस। मेरा ये कहना है कि कॉन्फिडेंस इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज। ये मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, मिस्टर शुभम वाच ने, ही had taken me- he said कि सर एवरीबॉडी सेज दैट रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल क्वालिटीज, आप क्यों बोलते हो कि कॉन्फिडेंस है? मैंने बोला रीजनिंग एबिलिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो उसको फादर ऑफ द ऑल क्वालिटीज बोलता हूँ, पर अगर मदर नहीं है तो अगली जनरेशन नहीं आएगी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप अपनी रीजनिंग एबिलिटी कैसे दिखाओगे, आप अपनी इफेक्टिव इंटेलिजेंस कैसे दिखाओगे, 15 की बाकी 14 क्वालिटीज कैसे दिखाओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? तो कॉन्फिडेंस तो बहुत जरूरी है, उसी के थ्रू आप बाकी चीजें दिखा सकते हो। तो ये हर एक चीज के ऊपर भी मैं, कुछ मैंने कर दिए हैं, कुछ मैं आगे आगे ऐड करता जाऊंगा इनके ऊपर। तो शैल वी कंटिन्यू? ओके, सो ये हमने देखा स्पेसिफिक एक चीज मैंने इसके अंदर ना, अगर हम शॉर्ट में देखें, अभी 5 चीजें और हैं, तो मैं अगर इनको भी आप कर लो, स्मार्ट तो आपके सामने लिखा ही हुआ सारा, एक और है स्मार्टी। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू गोल किसका होना चाहिए, योर्स।
योर ड्रीम, योर गोल, जो आप चाहते हो, योर विजन, उसके बेसिस पे जो आपने अपना गोल डिसाइड किया है, योर गोल। पापा का गोल सेटिस्फाई करने के लिए, मम्मी का गोल सेटिस्फाई करने के लिए, फ्रेंड का गोल, बकवास। यस, योर पापा मम्मी दे आर गाइडिंग यू, स्कूल में कैरियर काउंसलर इज गाइडिंग यू। तो वंस यू हैव बीन गाइडेड, योर फादर वांट्स यू टू जॉइन द, ये एसआरटी में आते हैं ना, यू वांट टू डू दिस, योर फादर वांट्स यू टू डू दिस, और योर पेरेंट्स वांट यू टू डू दिस, तो एक कन्फ्लिक्ट होती है। पर अब अगर आप एसएसबी जा रहे हो क्योंकि आपके फादर चाहते हैं कि आप फौज में जाओ, और तो उसको पहले अपना गोल बनाओ। अगर वो आपका गोल नहीं है तो अचीव नहीं होगा, धक्के से सही हो भी जाए तो पता नहीं, बट चांसेस आर वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। फादर्स गोल नहीं, फादर का गोल था, आपने उसको अपना बना लिया, यू डिस्कस विद हिम, सारे वो करके देन यू सेड ओके आई विल गो फॉर आर्मी, आई विल गो फॉर एनी ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, आफ्टर दैट इट इज योर गोल। तो ये योर वाला जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why do you want to join? इंटरव्यू पूछ रहा आपसे, सर बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू जॉइन, सर बिकॉज माई ग्रैंडफादर, नो, यू हैव टू वांट टू जॉइन। वो मोटिवेशन आपकी आनी चाहिए, तब जाके ये जो गोल हैं जो आपने सेट करे अपने स्मार्ट गोल्स, ये तब जाके पूरे होंगे। नहीं तो आप जब आपका नहीं है तो मैं क्यों करूं यार, कौन सा मेरा गोल है, वो कहीं ना कहीं एटीट्यूड आ जाता है। सो वी डिस्कस्ड फोकस्ड। फोकस मैंने आपको एक दिखाया भी था कि कैसे जब आपने फोकस करते हो तो डिस्ट्रैक्शन चली जाती है, और जैसे ही एक मिनट पर्पल बॉल की तरफ देखा, सारी फिर वापस आ गई, अरे कहाँ गई, इमीडिएटली आ जाती है। तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको कंट्रोल में रखना है अपने। नेचुरली यार, अब साधु सन्यासी तो नहीं बनोगे, यू हैव टू लिव विद योर फ्रेंड्स, योर पेरेंट्स, तो वो चीजें चलती रहेंगी, पर मेन फोकस जो है आपका होना चाहिए अपने गोल के ऊपर। यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक दैट आई कैन अचीव, एंड इट शुड बी सेलेक्टेड फॉर द करेक्ट टाइम। तो ये सब हमने डिस्कस किया था, रेडी, मीनिंगफुल एंड एक्साइटिंग। ये हमने एक बार दोबारा करके देखना है तो देख लो। फोकस ऑन दैट पॉइंट विच इज राइट इन द सेंटर। 4 बने हुए हैं, सॉरी 4 को 4 sides, total 8 circles are there, spherical से लगते हैं बॉल टाइप के, और बीच में एक व्हाइट है, व्हाइट के अंदर एक पर्पल कलर का डॉट है, उस पर आप फोकस अगर करते हो, सही ढंग से करोगे, यू विल फाइंड। मेरे जाने लग गए, और मैंने बोला जाने लग गए तो फिर वापस आ गए। सो डिस्ट्रैक्शंस एंड गोल्स, ये मैंने आपको बताया था। यस, दिस इज वेयर वी वर, जो मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे। नाउ दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजायर, करंट रियलिटी, मैं एक एक जैसे जैसे करूंगा साथ साथ बोलता हूँ। तो ये आप आ गए हो, डिजायर, ये डिजायर वाला मैं थोड़ा सा आगे चल के भी आपको डिस्कस करूंगा। कैन एनीबडी अपडेट मी ऑन टाइम? या देख रहे हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर, वो जो हमने बोला। सो डिजायर, व्हाट डू आई वांट, व्हाई, सबसे इंपॉर्टेंट हर चीज के अंदर व्हाई है, व्हाई के लिए हम काम करते हैं। आप किसी भी चीज पे व्हाई पूछो, आपको आंसर मिलता है, और 5 व्हाई पूछ लो, उसके बाद आपको और कोई आंसर ही नहीं बचेगा। व्हाई 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 व्हाई, यू हैव कम टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। दिस इज माय ड्रीम, व्हाई, 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 थप्पड़ मारो, व्हाई व्हाई पूछे यार, बच्चे बोलते हैं ना ये क्या है, आप बताते हो ये है, ये क्यों होता है ऐसे, आपने बताया ऐसा होता है, क्यों होता है ऐसे, वो क्यों 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 करके जान खाता, हम बोलते हैं यार ये, तो वो असर होता है। जैसे कागज को कितनी बार फोल्ड कर सकते हो, इफ यू फोल्ड अ पेपर, कितनी बार फोल्ड कर, एक बार तो बड़े आराम से हो गया, उससे आगे हो गया, उससे आगे हो गया, एक स्टेज आती है आई थिंक 6th या 7th टाइम, उसके बियॉन्ड आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते हो, चाहे आप बड़ा न्यूज़पेपर ले लो, उसका सेंटर पेज ले लो कि ये तो हो जाएगा, नहीं होगा, देख लेना करके ट्राई। तो ये वही आपको जब मिल जाता है ना अपना, देन दैट इज योर गोल, वो आपकी फिर इच्छा है। नो योर 80% effort, 80% of effort should go into why, and your focus on how is the one which tells you
द रिसोर्सेज। ये मैं ग्रुप लर्निंग एक्सरसाइज में मैं बोलता हूँ, पहले ये WWW डिफाइन करो, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या गोल है, जो भी चीज़ है उस प्रॉब्लम को आपने जब डिफाइन कर लिया, उसके बाद रिसोर्सेज, हाउ वी हैव टू टेक द इंजर्ड पर्सन, वी हैव टू गिव हिम फर्स्ट एड, हाउ। फिर आपको पता है यार उस हमारी गाड़ी के अंदर वो पड़ी होगी, हम मैच खेल के आ रहे हैं, तो हाउ गिव्स यू रिसोर्स, यू हैव, मुझे तो बहुत ज्यादा चोट लगी, वी हैव टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, हाउ। तो ये हाउ आपको रिसोर्सेज की तरफ लेके जाएगा। यस, इसकी तरफ भी आपने टाइम लगाना है, बट से अबाउट 20%, इससे ज्यादा इस पे वेस्ट नहीं करना। वाई इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउ तो चलते चलते रास्ते में आपको चीजें मिलती जाएंगी, आपके रिसोर्सेज क्रिएट होंगे, आप करने लगोगे। वो बुक पढ़ लो, सीक्रेट्स, एक बुक है सीक्रेट, वो बोलते हैं कि जिस चीज को आप दिमाग में रखोगे ना, ये हो जाए, फोटो लगा लो, इधर कर दो, वो कर दो, वो आपकी जिंदगी में एक्चुअली आ जाती है। जादू नहीं है। जब आप एक चीज के तो आपका फोकस उस चीज पे आ जाता है, जब उसके लिए फोकस आता है तो फिर आप उसके लिए काम करना शुरू करते हो। अनलेस आप शेक्सपियर हो तो बस उसको बैठ के लेट के देखूंगा यार इसको मैं ऐसे, फिर तो नहीं होगा। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, यू विल गेट इट, रियलिटी। इसमें आपने, मैं यही लिख देता हूँ, ये बार बार इसकी स्लेट साफ करने के बजाय यही लिख देता हूँ, वेयर एम आई नाउ, आज मैं कहाँ हूँ। ये जरूर चेक कर लो कि मैं, तो हमें रियलिस्टिक गोल सेट करना है, तो मैं आज कहाँ हूँ, आउटकम क्या चाहिए मुझे, जब ये हो गया तो व्हाट विल आई सी, व्हाट विल आई सी, व्हाट विल आई हियर, व्हाट विल आई फील व्हेन आई हैव दिस गोल, जब मैंने इसको अचीव कर लिया, जब ये मुझे मिल जाएगी तो क्या होगा, व्हेन आई हैव दिस। इसको इतना कंपेलिंग बना लो ना कि इसके बिना गुजारा ही नहीं है मेरा। उतना जैसे बचपन में करते थे, कोई चीज के पीछे पड़ जाते थे ना, ऐसे ही इस गोल के पीछे पड़ जाओ। मुझे ये जो चाहिए है, जब वो मिलेगा तो मुझे कैसा फील होगा, मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा तो मुझे पूरी दुनिया कैसी दिखाई देगी, क्या सुनूंगा। सुनूंगा कि आपको आजकल वो व्हाट्सएप पे आ जाते हैं मैसेज वैसेज ना, वो थम्स अप थम्स अप थम्स अप। अभी जिस दिन वो बच्चों ने अपना रिजल्ट बताया, क्या वो टेलीग्राम में वो पूरे भर गए थे उसके ऊपर, सब कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। तो ये कॉन्ग्रेट्स सुनोगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। एंड फिर वो क्या फीलिंग आएगी आपके अंदर, उसको सोचो, उसको इमेजिन करो, और ऐसी कंपेलिंग चीज कर दो कि वो फिर आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसके बाद मैं मिटाना ही पड़ेगा। तो एविडेंस भी हमें चाहिए कि भाई ये हमारे उसी के साथ रिलेटेड है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मुझे पता कैसे लगेगा कि मैंने अचीव कर लिया वो चीज, जो मैं चाहता था वो मैंने अचीव कर लिया। क्योंकि जब हमें पता लग गया जो मैं चाहता था मैंने अचीव कर लिया, थिंग हैज नॉट गॉट ओवर, सेट द नेक्स्ट गोल। यू माइट हैव नोटिस दैट ये कई सिंगर्स वगैरह होते हैं, व्हिच दे कम अप सो क्विकली, इतनी जल्दी राइज होती है उनकी, एंड देन आशिकी मूवी थी एक, आशिकी 2, देन दे डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट सक्सेस, फिर यू नो ऑल द रॉन्ग थिंग्स, एंड देन बाय बाय, इधर लाइफ और देयर कैरियर। तो जैसे आपने गोल सेट कर लिया, सेट द नेक्स्ट गोल, अमिताभ बच्चन सेट द नेक्स्ट गोल, सेट द नेक्स्ट गोल, तो वो हमने करते हैं। पर मुझे पता कैसे लगेगा कि, तो यहाँ तो आप जो, मेरा प्रिजम्पशन है कि आप अगर डिफेंस के लिए जाना चाहते हो तो आपको पता है कि मुझे एविडेंस क्या है, हाउ विल आई नो व्हेन आई गेट इट, व्हेन आई गेट आर, व्हेन आई गेट मेडिकली फिट, व्हेन आई गेट दिस। तो एक एक स्टेज आपकी फिर वो साथ साथ होती जाएगी। पर्सनलाइजेशन, ये क्या केवल मेरे लिए है, खाली मेरे लिए है, क्या इसका असर किसी और पे पड़ेगा? सोचो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके पेरेंट्स कैसे फील करेंगे, व्हाट विल दे सी फील एंड हियर, फ्रेंड्स, आपके जो वेल विशर्स हैं। बोलो सर, फ्रेंड को तो जेलसी हो जाएगी, कईयों को हो जाती है, 3 इडियट्स की तरह। नहीं, खुशी होती है। तो गोल आपका पर्सनलाइज्ड गोल है,
चाहे पापा का है चाहे मम्मी की वजह से आप कर रहे हो उस गोल को, अंकल की वजह से कर रहे हो, ग्रैंडफादर की वजह से कर रहे हो, गोल आपका है, बट इट इज नॉट ओनली फॉर यू। समवेयर यू नो दैट मेरी फैमिली को इससे क्या होगा, ये तो हमारे अंदर आता ही है ना। तो दे पर्सनलाइजेशन, ये टिक करते जाना अपनी चीजों को, अपने आपके पास है आप तो व्हेनेवर यू आर, बार बार उनको चीजों को चेक करते रहो जब गोल सेटिंग के लिए, कि उसके बाद तो फिर आपके मेजरेबल वगैरह आप चेक करोगे, ये करोगे। कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट क्या होता है? एक रेफरेंस है। ये बड़ा है कि छोटा है? अगर इससे बड़ा फोन मैं साथ में रखूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, इससे छोटा फोन साथ में रखूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। तो वो कंटेक्स्ट है। एंड एक्चुअली वो ये फौज में मैंने देखा है कि इन मैनी साइड्स यू नो वो कंटेक्स्ट होता नहीं है, और पीपल कोई सबसे पहले बोलना, कोई उसने ना वो सबसे पहले शुरू कर दिया, उसका बैंड बज गया, कुछ 4 नंबर पे बोलना, वो 4 पे बोला था, रिकमेंड हो गया, उसने 8 ऑब्स्टिकल किए, वो रिकमेंड हो गया, जिसने पूरे किए वो नहीं हुआ। तो ये कंटेक्स्ट जब नहीं होता ना, फिर वो गलत चीज है, फिर वो वायरस बन जाता है। तो इसके लिए भी एक आपको कंटेक्स्ट होना चाहिए, वेयर, व्हेन, ये डब्ल्यू जो है ना, वेयर, व्हेन, हाउ, विद whom डू आई वांट इट, डू आई वांट somebody else also in my team। कई बार टीम एंडेवर भी आपको चाहिए होता है, आप लोग मिलजुल के स्टडीज करते हो। अगर आप जैसे अभी आप मान लीजिए आपने ग्रुप बना लिया, लेट्स कम डाउन टू एसएसबी, आपको पता है कि अभी मैंने या जीडी के लिए टॉपिक्स, ओके यार, यू ये 3 टॉपिक तू बना, ये 3 तू बना, ये तू बना, कल शाम तक हम इसको मिला के इतने बजे मिलते हैं। 3 बंदों ने एफर्ट किया, 3-3, हर बंदे का कितना एफर्ट था? 3 टॉपिक्स, मिला क्या आपको? 9 टॉपिक्स। फिर इसी तरीके से आप जब मिलजुल के करोगे तो डू आई वॉन्ट एनीबडी एल्स अलॉन्ग विद मी? ये टीम स्पिरिट तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारी ओएल क्यू है वहां पे। तो अगर ये मेरे साथ पॉसिबल है तो क्रिएट, नहीं है आजकल तो ये आपका जूम वगैरह है, जूम पे ग्रुप बना लो। सर मेरे गांव में कोई नहीं है, तो जितने कॉलेज में कोई था, कुछ स्कूल में था, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे रिक्वेस्ट करो। अगर उनका भी यही एम है तो आप सबका, ये 4 बंदों का सेम एम है, मेक योर ओन टीम एंड स्टार्ट डूइंग इट। तो इस चीज पे भी ध्यान रखना है, इसकी पॉसिबिलिटीज आगे मेरे लिए जब कर लूंगा तो क्या रास्ते खुलेंगे मेरे लिए। जो आउटकम है, ये जो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज, जो ये आउटकम जब मिल जाएगी, व्हाट विल इट ओपन अप फॉर मी। आप अगर एसएसबी में चले जाते हो, एसएसबी में रिकमेंड हो जाते हो, पहले तो रिटन टेस्ट के बाद एसएसबी आ जाए, तो जब आ गई तो और पॉसिबिलिटीज खुल गई आपके पास, आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए, और पॉसिबिलिटीज खुल के बाद अभी उसके बाद आप एकेडमी ज्वाइन करोगे, एकेडमी में अपना कोर्स करोगे, तो पॉसिबिलिटीज और मुझे मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज मेरे सामने और खुलती जाएंगी। मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया तो मेरे लिए सेकंड फ्लोर का रास्ता खुल गया। आप गेम्स खेलते हो, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं, सुपर मारियो वाला ही पता है। तो उसमें जब आप एक स्टेज पे पहुंचते हो तभी आप सेकंड स्टेज कर सकते हो, फिर आप थर्ड पे जाते हो, फिर आप फोर्थ पे जाते हो। तो इस ये करने के बाद मुझे और क्या मिलेगा, और मैं किन चीजों के लिए काबिल हो जाऊंगा, किन चीजों, मुझे क्या चीजें अलाउ हो जाएंगी इसके बाद। ये लिखो, इनको जब तक नहीं लिखोगे, जो भी आपके मन में आता है वो आंसर आप बनाओ इन चीजों पे, ये चेकलिस्ट के सामने लिखते जाओ इन चीजों को। अभी ये तो अच्छी चीजें हो गई, अभी रास्ते में मेरे ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं। पहले तो इमीडिएटली अभी मेरे सामने है इस चीज को पूरा करने के लिए, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स? सर इंग्लिश स्पीकिंग सर, तो इंग्लिश स्पीकिंग है तो काम करना शुरू करो, उस ऑब्स्टिकल को दूर करने के लिए क्या कर सकते हो, उस पर बात करना शुरू करो। सर मैंने सर हॉबी नहीं थी कोई, अभी बनाओ। यस यू कैन टेल कि सर मैं पिछले 3, आई रियलाइज दैट आई शुड हैव हैड हॉबी, तो मैं अभी कर रहा हूँ उसके ऊपर, एंड आई वर्क, मैंने ये किया है। उसको पता है कि आपने 3 महीने के अंदर ही इतना कुछ किया है, गुड इनफ, सच बोलो। तो जो ऑब्स्टिकल आप विजुअलाइज कर सकते हो, अभी मेरे सामने क्या है, इंग्लिश है, तो अभी एक्शन लेना पड़ेगा आपको।
मेरे में शाई हूँ, तो अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, लोगों से मिलना शुरू करो। ये शाइनेस वाली क्लास देख लेना, मेरी स्पेशल क्लास है, तो यू कैन सी इट। इमोशनल कोई प्रॉब्लम है, सी माई क्लास ऑन इमोशंस, उसके बारे में। तो आपको मतलब जो यूट्यूब पे नहीं है वो आपको क्लासेस में मिल जाएंगे। स्पेशल क्लास में बहुत सारी हैं जिनके अंदर आपको ये यूजफुल चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कुछ विजुअलाइज की, हाँ आगे जाके ये भी ऑब्स्टेकल आ सकता है, चलो उसके लिए अभी अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो कर लो, ये और आगे जाके ये ऑब्स्टेकल आ गया तो छोड़ मत देना किसी चीज़ को। जब आएगा तब तक आपकी कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। अगर एक बच्चे को जो क्लास 3 में है उसको बोर्ड की बोलो कि कल से तो नेचुरली उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, वो दैट्स एन ऑब्स्टेकल फॉर हिम। बट ग्रेजुअली ईच ईयर ही इज बिन एक एक स्टेप ऊपर जा रहा है, उसके कैपेबल बनता जा रहा है। तो ऐसे ही जब अपने गोल की तरफ आप बढ़ना शुरू करोगे, आपके रिसोर्सेज भी इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, आपकी अपनी कैपेबिलिटी बढ़नी शुरू कर जाएगी, आपकी स्किल्स आनी शुरू हो जाएगी। तो इनके ऊपर यू मस्ट वर्क, एंड वर्क करो। जो ऑब्स्टेकल आपको दिख रही है उसको दूर करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है, उसको तोड़ दूं, उसके ऊपर से कूद जाऊं, उसके नीचे से निकल जाऊं, बाईपास कर दूं किसी। पर ये इंग्लिश स्पीकिंग आप बाईपास नहीं कर सकते। ये बहुत कॉमन एक कोई एक क्वेश्चन आता रहता है। Yeah, Jai Hind to all of you. I've seen so many Jai Hinds. Being an NCC Air Force cadet, I have applied to for ये बेटा, ये जब आपने अप्लाई कर दिया, देन कीप विजिटिंग दैट joinindarmy.nic.in साइट। उसके ऊपर आप जाते रहोगे, फिर आप जो दोस्त हैं आपको और कई फ्रेंड्स ने भी किया होगा, उनसे भी आपको पता लगता रहेगा। एंड कीप चेकिंग ऑन इट, डेली आप एक नज़र मार लिया करो उसके ऊपर। इनहांसिंग क्वालिटीज मैंने शिव को सबके लिए बता ही दिया था, राइट। तो रिसोर्सेज, मुझे क्या चाहिए, हाउ, हाउ ना, हाउ विल आई अटेन दिस गोल, व्हेन यू आस्क हाउ, तब आपको पता लगेगा कि मुझे व्हाट डू आई नीड। जब हाउ पूछोगे ना, हाउ डू आई डू दिस, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट एड किट चाहिए, अच्छा कहाँ से मिलेगी, फिर आप उसको ढूंढोगे। सो मुझे क्या रिसोर्सेज, व्हाट और विच रिसोर्सेज आई नीड, विल आई नीड, जो आई विल करता हूँ, आई विल नीड इमीडिएटली और आगे चल के। कुछ आगे के लिए आप तैयारी कर सकते हो। आपको पता, जैसे हम माउंटेन वाली बात करते हैं, ऊपर जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो यू हैव टू कैरी इट नाउ इटसेल्फ। वो तो आपको अभी कैरी करना पड़ेगा, वहां से नहीं मिलेगा आपको। तो जो चीजें आपको, तो ये जब, इसलिए तो हम प्लानिंग करते हैं, तो ये आप प्लानिंग करोगे तो आपको इमीडिएट रिसोर्सेज, फ्यूचर रिसोर्सेज, इन दोनों के ऊपर आप दिमाग लगाते जाना, तभी आप गोल अचीव करना आपने। अभी एक और चीज है जो नीचे सेकंड लास्ट है, सैक्रिफाइसेस। यू विल हैव टू मेक सम सैक्रिफाइसेस, कि ऐसे ही हो जाएगा। अगर आपको अपने लिए फ्यूचर में आप एक प्लेजर चाहते हो, तो आज आपको पेन उठाना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी बनानी है तो जिम में जाके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, चाहे घर में कर लो, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपना स्टेमिना बढ़ाना है, आपको दौड़ना पड़ेगा। शुरू में पेनफुल लगता है, अगर आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं तो पेन उठानी पड़ेगी, फिर फ्यूचर में आपके लिए वो लाइफ प्लेजरेबल हो जाएगी। तो अभी इसके अंदर मुझे कौन सी तकलीफें उठानी पड़ेगी, मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, व्हाट डू आई नीड टू, और व्हाट sacrifices will I need to make। अजय, अभी आप मेरे से पूछ रहे हो विच अकेडमी इज बेटर फॉर मी, आई एम ए ओटी, बोथ आर इक्वली गुड। आपका गोल क्या है, यू वांट टू डू बी ए शॉर्ट सर्विस आपको चाहिए, या आपको परमानेंट कमीशन चाहिए, दैट विल डिसाइड। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा तो भाई ज़्यादा आपको ओटीए सूट करेगा, बिकॉज उसमें मैथ्स का पेपर नहीं होता है। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है अजय। ओके,
चंद्रकांत थोटे, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो कि देयर इज नेपोटिज्म इन द एसएसबी। तो आप भी लगा लो ना, जैक लगाओ, ढूंढो कोई बंदा जो आपका पैसे खा के कर दे। माय डियर फ्रेंड, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, you just cannot do it. Say I am the president of the board, मेरे पास कोई बच्चा आया है, अभी आई नो समबडी, I can tell my GTO who is much junior to me, यार इसको कर दे यार प्लीज, इसको कर दे। बेटा फौज है, फौज में आप ऐसी चीज नहीं करते हो। ये जो हर्ड की मैंने बोला ना कंटेक्स्ट, अंगूर खट्टे होते हैं फिर वो बहाने ढूंढते हैं हम समथिंग कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। जब हम कोई चीज अचीव नहीं कर सकते हैं तो अपने जो अंदर एक हमारी ईगो होती है उसको बचाने के लिए इमीडिएटली ऑटोमेटिकली डिफेंस मैकेनिज्म आता है। सारा ग्रुप ही वॉश आउट हो गया, वो एक बचा वो आर्मी ऑफिसर का लड़का था तभी हो गया। वो एक बच्चे ने तो बताया भी कि वो पैसे देके हुआ है। मैं बोला बेटा तो तुम इधर क्यों, मेरे पास शॉर्ट शॉर्ट में आया था, मैं बोला तुम क्यों आए हो यार, ये पैसे वहीं जाके दे दो। सो डोंट, अगर किसी ने आपको बताया है तो जाके उसको कान खींच दो, नहीं खींचने कोई बात नहीं, बट डोंट स्टार्ट बिलीविंग सच थिंग्स यार। आप सोचो आपकी किस कैरियर के लिए आप जाना चाहते हो। मैंने बोला था कि अपने वैल्यूज देख लेना, तो ये चीजें आपने सोचना है, सोच लो। आई मीन आई कांट स्टॉप यू फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग, आई एम क्लैरिफाइंग इट कि जितना मर्जी आप कर लो ये नहीं हो सकता है। वहां बड़ा क्लियर है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वेरी वेरी क्लियर इन द आर्मी। और कोई खाता है, होते हैं एबरेशंस होती हैं, कुछ लोगों ने आपने देखा कि कहीं पर आ जाता है पेपर में वो उसने ये कर दिया, उसने ये चीज कर दी, इमीडिएटली इट कम्स टू नोटिस एंड कोर्ट मार्शल। आई मीन ज्यादा से ज्यादा एक साल के अंदर वो, बिकॉज वो अपील कर देते हैं, ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, ऐसे होता है। नोट कि स्टे पे स्टे, स्टे पे स्टे, तारीख पे तारीख नहीं होती, फिर वहां तो ठा होता है काम। तो प्लीज अगर ऐसे कुछ है आगे इरादे, सर आगे चल के मैं जीटीओ बनूंगा, नहीं, not always, don't somebody saying they always spread, no, they don't always spread lies, because let's not categorize anybody. If somebody has not made it, he has not been able to show it, उसमें कोई कमी नहीं थी। और अगर नहीं कर पाया है तो आगे के लिए उस पर वर्क करो, पर एक इनर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म एकदम से आ जाता है, तो जब आता है तो उसको जरा थोड़ी देर के लिए ठीक है, फिर उसके बाद उसको हटा दो, नहीं तो आप इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर पाओगे, कभी सही इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं कर पाओगे। ओके, सो व्हाट्स, मुझे क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये जो इधर उधर घूमता हूँ, गेड़िया मारना, ये करना, वो से अगर जरूरी है तो आप सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मैं इनके लिए तैयार हूँ। यू विल हैव टू एडजस्ट योर, ये मेरी इमेज आ जाएगी ना इधर, एडजस्ट, यू मे हैव टू एडजस्ट योर प्रायोरिटीज, कौन सी चीज करूँ। मैंने बोला हो सकता है आपने 2-3 गोल इकट्ठे कर रखे हैं, तो प्रायोरिटी के साथ लगा के देखना, इसीलिए आपको ये काबिलियत चाहिए, ये रीजनिंग एबिलिटी का हिस्सा है। और जीपी के अंदर इसलिए आप प्रॉब्लम लिखते हैं, उसकी प्रायोरिटी लिखनी होती है आपको, तो इसीलिए लाइफ के लिए भी आपने करना है। तो क्या मेरे को सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्या मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे और क्या करना पड़ेगा, ये आप देख लेना। टाइम फ्रेम, मुझे किस टाइम फ्रेम के अंदर इसको अचीव करना है। नो, ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बोलता हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं लिखने लगूँ तो वी विल नॉट हैव द टाइम, तो जरा जल्दी जल्दी इसको कर लो। डू आई नो व्हाट आई वांट स्पेसिफिकली, प्लीज नोट इट डाउन। डू आई नो व्हाट आई वांट स्पेसिफिकली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिकॉज ये पहले गोल से रिलेटेड है। How will I know I'm making progress? That means, how will I know that I'm making progress or diverting, measurable, वो है कि नहीं। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा गोल अचीव हो गया, ये प्रोसेस आपको सेट करना पड़ेगा। और व्हेन अचीव, तो आपको पता लग जाना चाहिए मेरे अंदर वो बिलीफ है कि नहीं, वो फेथ है कि नहीं, दैट आई कैन अचीव इट। नहीं है तो पैदा करो।
ठीक है, ये बिलीफ है कि नहीं मेरे अंदर। फिर एम आई रेडी, मैं तैयार हूं मेंटली फिजिकली इस चीज को फॉलो अप करने के लिए। नहीं, फिजिकली मेरे थोड़ी सी भी कमी है तो पूरी करो, या साथ साथ कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। तो रेडीनेस, चेक योर रेडीनेस मेरी है कि नहीं। इज दिस द राइट मोमेंट, या अभी मेरे को वेट करना चाहिए इसके लिए। अभी जैसे पूछ ही रहा समबडी आस्क्ड, आई थिंक अजय ना, कोई और किसी ने पूछा था ओटीए, और तो अभी मैं किस चीज के लिए रेडी हूँ। ओके, मैथ्स नहीं चाहिए, अगर मेरे को सीरियस करता मुझे मैथ्स भी चाहिए, आई एम नॉट येट रेडी फॉर दैट। उसके लिए फिर आपको एफर्ट करना पड़ेगा। सो इज दिस द राइट मोमेंट, इज दिस द टाइम कि मैं अभी ये भीड़ को छोड़ के इधर को चला जाऊं, ठीक है। और उसके लिए क्या मैं राइट मोमेंट, आप टर्न करते हो, राइट मोमेंट पे टर्न करते हो, तो वो अभी टाइम है कि नहीं। मैं कब से ये शुरू करूंगा, व्हेन विल आई स्टार्ट। मेरे को नीटनेस के लिए ना बड़े कम नंबर मिलते थे, रिमार्क ही आता था नेगेटिव, और वो अभी तक ठीक कर लेना चाहिए था। एक तो ये मुझे आदत है इसके ऊपर ऐसे लिखने की, स्क्रीन वाली, अब वो इसमें मैं फिर थोड़ा हिलता है तो मैं नहीं करना, कैमरे के आगे हाथ आता है तो मैं नहीं करना चाहता। सो व्हेन विल आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस गोल, एंड फाइनली व्हेन विल आई कंप्लीट इट। ये पूछो, खुद से पूछो, ये बार बार पूछो। जो भी आपका एक गोल है, दो गोल है, तीन गोल है, लॉन्ग टर्म गोल्स, उनके बारे में इन चीजों को पूछो, खुद से पूछो, सवाल करो रिपीटेडली। इट विल लीड टू discovering that these lifetime goals are closer to your realization than you ever thought। कभी आपने रियलाइज नहीं करता कि हाँ यार ये तो हो सकता है, आई कैन डू इट। तो इस वजह से मैंने बोला कि इसको आप जरूर करें। या ये तीन सर्कल क्या देख रहे हो आप, अगर कोई भी चीज अगर आपने अचीव करनी है तो यू हैव टू हैव द नॉलेज फॉर दैट, यू हैव टू हैव स्किल फॉर दैट, यू हैव टू हैव डिजायर फॉर दैट। इनमें से कोई भी चीज अगर नहीं है, काम नहीं बनने वाला। आपको पता ही नहीं है कि एनडीए की या सीडीएस के लिए, अभी कल नेवी का कुछ, कल परसों आया शायद, नेवी के लिए कुछ फॉर ग्रेजुएट्स नोटिफिकेशन। आपको पता ही नहीं है तो क्या आप उस गोल को अचीव कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना। अच्छा, फिर अब इसको करने के लिए मेरे में इच्छा है कि नहीं, डू आई डिजायर, डू आई हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग भी नहीं, बर्निंग डिजायर, पूंछ में आग लगी होती है ना ऐसे, डू आई हैव ए बर्निंग डिजायर इन मी टू डू दिस थिंग। एंड स्किल, स्किल इज कैसे करूंगा मैं, तो इसके लिए आई एम देयर, मेनी अदर मेंटोर्स आर देयर, आप मदद ले सकते हो। डिजायर तो हम पैदा नहीं कर सकते आपके लिए, घोड़े को पानी तक ले जाते हैं, पानी को घोड़े तक ले जाते हैं, पीना नहीं पीना उसकी मर्जी। एंड दैट नॉलेज यू हैव टू गो कि मुझे चाहिए क्या, व्हाट, व्हाट, व्हाई, मुझे चाहिए क्या, व्हाट डू आई नीड टू लर्न, व्हाट रिसोर्सेज डू आई हैव अवेलेबल टू मी टुडे, व्हाई डू आई वांट, मैं ये चेंज करना क्यों चाहता हूँ अपने लिए, अपने लिए, किसी और के लिए। तो ये आप आंसर करो, डू यू हैव दिस, नाउ द डिजायर, व्हाई अगेन, व्हाई डू आई वांट दिस चेंज। अपनी मोटिवेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट एल्स कैन आई डू टू इंक्रीज माई डिजायर। ये जो है ना, डिजायर में क्या आएगा आपका, वांट टू। इसके लिए मोटिवेशन ढूंढो, और कैसे मेरी ये और इंक्रीज हो जाए, कैसे मेरी पूंछ में आग लग जाए इस चीज को लेके। यस, इसके लिए मुझे अगर किसकी मदद चाहिए तो किसकी किसकी मदद ले सकता हूं मैं उसको पूरा करने के लिए, स्किल्स, हाउ।
ये मैं इसको ये बोलने के लिए कि कर्नल रिहाल का यूज करो उसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यस, व्हाट इज माय प्लान टू ओवरकम, जो भी अभी मैं हूँ उसको ओवरकम करने के लिए, कोई दिक्कत है उसको ओवरकम करने के लिए, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको अचीव करने के लिए, जैसा मैं आज हूँ कल मैं कुछ और हो जाऊंगा, वो बनने के लिए, वो चेंज कराने के लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए, what skills do I need to gain for doing this thing, who can teach me this, एंड अनअकैडमी तो आपके पास भरमार है, किससे आपने सीखना है, और ये जब चीजें करोगे, जब नॉलेज हो जाएगा आपके अंदर, स्किल आ जाएगी, दिस विल गिव यू, ये जो कॉमन एरिया है कॉम्पिटेंस, दिस विल गिव यू जब नॉलेज एंड डिजायर, दिस विल गिव यू द विजन, एंड डिजायर एंड जब स्किल दोनों हो जाएंगी, देन कौन सी पिक्चर है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसकी नहीं सुनता हूं, अपने आप की नहीं सुनता, बिकॉज सबसे डेंजरस खिलाड़ी तो आपके अंदर है, जो आपको रोकता है, आपका माइंड। कमिटमेंट कर दी कि कल सुबह से मैं 5 बजे 5 किलोमीटर रन करूंगा, आज बहुत ठंड है, सवेरे हो गई, अलार्म बज गया, स्नूज स्नूज स्नूज, मम्मी आके बोली बेटा तूने बोला था, स्मार्ट बनते तो बोलते ही नहीं है किसी को, इसलिए बोलता हूँ कि अपना जो आपने कोई गोल किया है कुछ बता दो लोगों को, तो वो आपके पीछे भी पड़ेंगे, वो भी आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, अपने फ्रेंड को, या तू मुझे जाकर उठा दे हम साथ चलेंगे, नहीं यार कल से चलेंगे यार, और नहीं यार आज मेरे पास जूते नहीं है, कौन क्या है ये, खुद खुद आपको रोक रही है वो चीज, तो वो वाला कमिटमेंट कौन सी पिक्चर थी देख लेना, पता नहीं अक्षय की थी या सलमान की थी, तो ये आप जब कर लोगे तब आपका कमिटमेंट आ जाएगा, आपके अंदर विजन आ जाएगी, और ये देखना यही आगे चल के आपकी, ये सबसे कॉमन, सभी के अंदर कॉमन है ये, तब आपकी वो एक आदत बन जाएगी, और ये आदत बनानी है आपने, अगर आपने जिंदगी में अपने आप को सफल करना है तो इसके लिए आपको जो कुछ चीजें चाहिए, आपको सम पिलर्स आर, सम सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड, और ये मैं आज नहीं करूंगा, ये हम अगली क्लासेस में कहीं ना कहीं करेंगे, ये मेरे केवाई कोर्स में, केवाईसी में तो ये मैं करा ही रहा हूँ, आगे भी बीच में या तो स्पेशल क्लास में मैं करा देता हूँ ऐसे कुछ चीजें, ये जो अभी पहली चीज है, फर्स्ट पिलर जो है मेरा, व्हाट इज माई गोल एंड ऑब्जेक्टिव, हमने कर लिया, मेरी बिलीफ्स क्या है, मेरी धारणाएं गलत जो मुझे बांध के रख रही है, पैर में जंजीर बनी हुई है, मेरे को पूरा जकड़ के रखा हुआ है जिन चीजों ने, जो मुझे पॉजिटिवली सोचने नहीं देती, वो क्या चीजें हैं, और उनको कैसे रिमूव करूं, दिस यू कैन सी द सम ऑफ द प्रीवियस स्पेशल क्लास है मेरी इसके ऊपर, गोल की आज हो गई हमारी, देन आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज, यू नीड रिसोर्सेज, तो ये भी आपको कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे वो रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, वी विल हैव दिस क्लास कभी आगे फ्यूचर में, you have to recognize your strengths, ठीक है, एंड इसी के साथ योर स्किल्स, यू हैव टू डेवलप दो स्किल्स, इन पिलर्स के ऊपर आपका सक्सेस खड़ा होगा, जो आप चाहते हो, जो आपका गोल है, यू हैव टू फाइंड वेज हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, एंड यस, इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भाई हमारे जो इमोशंस हैं वो बीच में आके, अगर आई वॉज फीलिंग सैड यार, I was angry yaar, I was this thing yaar, no, you have to take control over that, you have to proactively, before that thing starts happening, you should be able to control it, create that motivation which we spoke about, and finally आया नहीं इसके अंदर, yeah, last one, the mindset, a leader's mindset, develop a leader's mindset, I think I have taken this class, अगर नहीं है तो मैं दोबारा लूंगा, कल्टिवेट ए माइंडसेट विच इज नेचुरली अलाइंड, जो हमारा गोल है, जो आउटकम मुझे चाहिए, जो रिजल्ट मुझे चाहिए, उसके साथ अलाइन करना है अपने माइंडसेट को, अगर मेरा माइंडसेट ये है कि यार वहां तो ऐसे, यार वो तो ऐसे होता है यार, ऐसे भी तो ऐसे होता है, वहां जाने को फायदा ही नहीं है, तो फिर जाओगे ही नहीं, जाओगे तो फिर ऐसे उल्टी सीधी कलाकारी ही करोगे, फिर उसका फायदा नहीं होगा, और टाइम, I think I'll be finishing it now.
80-20 रूल एक अपने मन में रख लेना. देयर इज समथिंग कॉल्ड, वेरी क्विकली आई विल डू इट, एक दिन इसकी पूरी क्लास ही कर देंगे. ऊपर चला गया. 80-20 रूल, इस पे आप देख लेना कि एक दिन के अंदर जो आपने सुबह से शाम तक क्या किया मैंने, उसके अंदर यू विल फाइंड ओनली 20% ऑफ द थिंग्स विच यू डिड दे वर द वे, जिसको आपको 80% रिजल्ट मिला है जो आप करना चाहते हो उसके ऊपर. और 80% चीजें ऐसी हैं जो आपने की जो आपको 20% रिजल्ट दे रही है. तो सोच लो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए. ये हर चीज में लागू है. मैंने आपको बोला था कि मैं कराऊं, हालांकि टाइम से तो आगे निकल गए हम. और एक, अगर आपको गोल चाहिए तो पहले तो आपने कुछ भी करना है तो आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको फिर आगे गोल बन लिया तो एक आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा. आई विल कवर इट, POA फॉर दिस थिंग. एक स्ट्रेटेजी आपको बनानी पड़ेगी. एंड फिर उस स्ट्रेटेजी को जब आप, सबसे जरूरी चीज है इसको पूरा करने के लिए गोल को, ये गोल तो शेख चिल्ली का काम है, स्ट्रेटेजी शेख चिल्ली का काम है. ये है जो एक लीडर करेगा. ऊपर की दोनों चीजें करके फिर जब एक्शन आप लोगे, मैसिव एक्शन, थोड़ा सा धक्का मार दो नहीं, मैसिव एक्शन यू विल टेक, देन इज द थिंग विच यू विल गेट सक्सेस. एंड हर बार पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं होता है. यू मे ऑल्सो गेट फेलियर. एंड कई लोग जब फेलियर मिलता है तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं. तो आपने भागना नहीं है. टेक इस फेलियर से टेक फीडबैक. फेलियर इज नेवर ए फेलियर, इट इज जस्ट गिविंग यू ए फीडबैक. फीडबैक को लेके अपनी स्ट्रेटजी के अंदर देखो कौन सी कमी रह गई, उसको लगाओ, अगेन डू इट. सक्सेस और अगेन फेलियर, ये जो बीच में एक कैटेगरी थी जो गिव अप कर देती है, ट्राई नहीं करती. कुछ है वो कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, फिर गिव अप कर देते हैं. यू हैव टू बी द वंस हु कीप, टेक द फीडबैक. गलती हो गई कोई बात नहीं, भाई आप मैथ्स में करते हो, फिजिक्स करते हो, आप देखते हो कुछ गलती होती है तो आप उसको ढूंढ लेते हो, फिर उसको ठीक करते हो, फिर आप आंसर आ जाता है. तो यू हैव टू. और ये सब इतना होने से क्या आपकी चीजें अचीव हो जाएंगी? नहीं होती है. वो बिलीफ पकड़ लेती है आके बीच में, आपकी वैल्यूज आके उसके बीच में टांग अड़ा देती है. ये फॉर्मूला एक दिन मैं पूरा आपको करवाऊंगा, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे. आर यू गेटिंग इट? बिकॉज दीज आर ऑल पार्ट ऑफ नोइंग योरसेल्फ एंड देन टेकिंग एक्शन. एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वो है अपनी एक जो सक्सेस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला तो इसके चक्कर में रह ही गया. जो लिखा है उसको रहने देते हैं. ये जो इको फॉर्मूला है, वी से दैट इवेंट, ये हुआ तो ये आउटकम आई, ये स्टिमुलस है तो ये वो क्या होती है, ये क्या है, ये रिएक्शन है. और एसएस में आप रिएक्ट नहीं कर सकते हो, रिएक्ट करे और गए. सो ये इवेंट क्या हो सकता, ये क्या है, कुछ भी जो हुआ, एनी थिंग विच हैपेंड इन योर लाइफ, एनी स्टिमुलस, जो पिक्चर आपके लिए आई, वर्ड जो भी है स्टिमुलस, वो नहीं होता तो क्या करते, मैं लिख दिया उसको, नहीं. द करेक्टेड फॉर्मूला इज इवेंट, बीच में आपके पास एक चीज होती है सी, और वो आपकी आउटकम देती है. नॉट दिस, इसके बीच में यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग. ये है आपकी चॉइस, जो आप चॉइस एक्सरसाइज करते हो, भगवान ने दी हुई है चॉइस. यहाँ पर सोच के आप करोगे. पहले वाले में यू स्टार्ट ब्लेमिंग द इवेंट, ये है वो तो पैसे खाते हैं, वहां तो नेपोटिज्म चलती है. यही बच्चा आके बोलेगा. जीटीयू ही ऐसा था, साइकोलॉजिस्ट क्या बोल रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, हमारी तो फिश मार्केट बन गई, ग्रुप ही ऐसा था. नहीं, यू हैड ए चॉइस. तो ये this formula also sometime later I think we'll discuss. Aaj I think we'll have to finish it here. And abhi in the next month let's set a date. 5th को क्या है, whatever it is, on 5th you can, if you want, 5th Feb, ये जो बहुत सॉर्ट आफ्टर है जिसको मैंने आज डिले कर दिया था, we will have a class on PP and DT. And
maybe around 15th or so, ये आपको आ जाएगा उसके अंदर, क्लास ऑन इम्पोर्टेंट लेक्चर टॉपिक्स। इसके अलावा आई विल हैव more than 6 to 8 special classes, फ्री स्पेशल क्लासेस। तो अगर आपके पास अनअकैडमी ऐप डाउनलोडेड नहीं है, काइंडली उसको आप डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर दो, विच इज़ फ्री, एंड देन यू अटेंड दोज क्लासेस। You will see what value you are getting, or if you are not doing, what you are missing, and then you can decide to exercise this प्लस में आपको आना है तो करना रहेगा। अभी यहाँ तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही मिल रहा है। इमेजिन सो मेनी super qualified people are there who can guide you on this. So thank you very much. Thanks for being with us here, with me here. तो ये 5th और 15th को याद रख लेना, मैं भी इसको नोट कर लेता हूँ, मैंने लिख तो दिया यहाँ पे 5th 15th PPNDT एंड इम्पोर्टेंट लेक्चर। ठीक है, एक मैं कोशिश करूँगा इसी महीने में GD के ऊपर, बिकॉज बड़ा रोते रहते, मतलब एक परमानेंट वो रहता है, सर वो जो कैसे बीच में कैसे घुसे हैं सर, बीच में कैसे घुसे हैं सर। मेरी क्लास में सब बच्चों को पता है, अभी मैं यहाँ पर भी एक बार इसको शेयर करूँगा। इफ नॉट हेयर देन ऑन द स्पेशल क्लास, कहीं ना कहीं इन दोनों में से ये दो, और ये दो तो मैं इसी पे करूँगा यूट्यूब पे, 5th and 15th PPNDT। ओके, एंड अगर ये PPNDT, अगर आप इसका वैल्यू उठाना चाहते हो ये PPNDT का, तो प्लीज सी माई वीडियो, मेरे नाम से ही है, और इट विल बी ऑन जहाँ मैं पहले था, SSB शॉर्ट शॉट अकेडमी पंजाब। यू पुट SSB शॉर्ट शॉट अकेडमी पंजाब, एक ही वीडियो है PPNDT के ऊपर, प्लीज सी दैट, इट विल क्लियर व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विदाउट। एक वीडियो है उसके अंदर, एक क्लिप है उसके अंदर, टाइम कर्टसी नेशनल ज्योग्राफिक, वो आप देखना, आपको बहुत मदद मिलेगी, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर दिस क्लास ऑल्सो। यूट्यूब के ऊपर आपको आराम से मिल जाएगा, ढूंढ लेना है इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय, सी यू।